ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا. پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. سورۃ القصص آیت 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے. یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے. یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے. سورۃ القصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج. ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے. یہ دوسرا معجزہ ہے. دوسرے مقام یعنی سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا. اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی. یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا، اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا. سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف. یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی. موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے. یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے. اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے. آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے. موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا. یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں. سورہ طٰہٰ آیات 29 تا 36 میں ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے
ताकि हम दोनों कसरत से तेरी तस्बीह बयान करें और कसरत से तुझे याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। इब्ने अबी हातिम में है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा के भांजे उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा उम्रे के लिए जाते हुए किसी आराबी के यहाँ मुकीम थीं कि उन्होंने एक शख्स को सुना जो पूछ रहा था कि दुनिया में किस भाई ने अपने भाई को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाया। इस सवाल पर तमाम लोग खामोश हो गए और कह दिया कि हमें इसका इल्म नहीं। अचानक एक शख्स बोला कि अल्लाह की कसम मुझे इसका इल्म है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस शख्स की बात सुनकर मैंने दिल में कहा, ये शख्स कितनी बड़ी जसारत कर रहा है कि इंशाअल्लाह कहे बगैर उसने कसम उठा दी। फिर लोगों ने उससे कहा कि बताओ। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी दुआ से अपने भाई हारून को नबुव्वत दिलवाई। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये बात सुनकर दंग रह गई और दिल में कहा कि वाकई इससे ज्यादा कोई भाई अपने भाई को फायदा नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ने सच फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बड़े आबरूदार थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश से अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा दी। इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा, सूरतुल कसस आयत 33 ता 35 में आता है। मूसा ने कहा, परवरदिगार, मैंने उनके एक आदमी को कत्ल किया था। अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे और मेरा भाई हारून मुझसे बहुत साफ जुबान वाला है। तू उसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज दे कि वो मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुठलाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौन के लोग तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारी फरमाबरदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर तय किया और फिरौन की तरफ चले आए। पहले अपनी माँ, बहन और भाई से मिले, फिर अपने भाई हारून को साथ लेकर फिरौन की तरफ चले। आपने दस्तक दी तो दरबानों ने आपको वापस लौटा दिया। वो सिर्फ कौम के सरदारों ही को उसके पास जाने देते थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वापस चले जाओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूलुन, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। अब कासिद तो दूसरे बादशाहों के होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जाता था। चुनाचे दरबानों ने आपको भी अंदर जाने दिया और वो आपको पहचान न सके, लेकिन फिरौन ने इन्हें पहचान लिया। ये मंजर कुरान की बहुत सी आयात में बयान हुआ है। चंद आयात और उनका तर्जुमा सुनिए। सूरत शुआरा आयत 15 में है, अल्लाह ने फरमाया, हरगिज ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, कहने लगा, तू मूसा है। जवाब मिला, हाँ। फिरौन ने जो कुछ कहा सूरत शुआरा आयत 18 ता 22 में है। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने हां नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे? फिर तू अपना वो काम कर गया जो कर गया और तू नाशुक्रों में से है। मूसा ने जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें फिरौन से पूरे रोब और दबदबे से कहीं। तब फिरौन बोला, वमा रब्बुल आलमीन, वो रब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में सरेआम तमाम लोगों को मुखातिब करके कही थी। आपकी बात का फिरौन ने जो जवाब दिया वो सूरत शुआरा आयत 25 ता 28 में है। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मूसा ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा ने फरमाया,
वही मशरिक और मगरिब का और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र शुरू किया जो फिरौन के बस में नहीं थी, इसलिए कि फिरौन कहता था मैं रब हूँ, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे आसमानों का, जमीनों का, मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह है। और ये वो चीजें थीं जिनको सब जानते थे कि ये फिरौन की दस्तरस में नहीं है। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया, यानी खतरनाक हद तक पहुँच गया, तो फिरौन ने इन अल्फाज में धमकी दी। फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे मैं तेरे पास कोई जाहिर चीज ले आऊं। जवाब में फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो उसको पेश कर। अब वक्त आ चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने मौजज़ात जाहिर फरमाते। सूरह तौहा आयत 47 ता 51 में ये जिक्र इस तरह मिलता है, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, उनकी सजाएं खत्म कर दे। हम तो तेरी तरफ, तेरे रब की तरफ से निशान लेकर आए हैं, और सलामती उसी के लिए है जो हिदायत का पाबंद हो जाए। हमारी तरफ वही की गई है कि जो झुटलाए और रूगर्दानी करे उसके लिए आजाब है। फिरौन ने पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर एक को उसकी खास शक्ल सूरत इनायत फरमाई, फिर राह समझा दी। उसने कहा, अच्छा ये तो बताओ अगले जमाने वालों का हाल क्या होना है? फिरौन का मतलब ये था कि जिन्होंने उस रब की इबादत नहीं की जिसके बारे में तू हमसे गुफ्तगू कर रहा है, उनका हाल क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया उसका जिक्र सूरह तौहा आयत 52 में आया है। उन्होंने जवाब दिया, उनका इल्म मेरे रब के हां किताब में मौजूद है, न तो मेरा रब गलती करता है न भूलता है। सूरह तौहा आयत 53 और 54 में अल्लाह ताला अपना तारुफ यूं बयान फरमाते हैं, उसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर उस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं, और तुम्हें इजाजत दी कि खुद भी खाओ और अपने मवेशी भी चराओ। इन सब चीजों में अक्ल वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अब वो मौका आ पहुंचा था कि उनके सामने निशानियां और मौजज़ात जाहिर किए जाएं। फिरौन बोला, अच्छा अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। सूरह शुआरा आयत 32 और 33 में है। मूसा ने उसी वक्त अपनी लाठी डाल दी जो अचानक खुल्लम खुल्ला अजदहा बन गई, और अपना हाथ बगल में देकर निकाला तो वो अचानक देखने वालों के लिए चमकने लगा। मतलब ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दो अजीम मौजज़ात जाहिर किए। उनको देखते ही फिरौन और उसके दरबारी सब हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली, लेकिन फिरौन ने फौरन पैंतरा बदला। वो डर गया था कि कहीं उसका कोई दरबारी इस्लाम न कबूल कर ले, चुनाचे फौरन बोल उठा, कहने लगा, ए मूसा, तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें हमारे मुल्क से अपने जादू के जोर से निकाल दो। यानी तूने जादूगरों वाला करतब दिखाया है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जादू की सरजमीन है, यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं, लेकिन ये जादू अजीब सा है। क्या तेरा इरादा ये है कि तू अपने जादू के जोर से हमें मरऊब करके बनी इसराइल को ले जाए, लेकिन हम मरऊब होने की बजाय तेरा मुकाबला करेंगे? सो हम भी तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे। तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले, न हम इसकी खिलाफ वर्जी करें और न तुम करो, किसी हमवार मैदान में मुकाबला हो। मूसा अलैहिस्सलाम तो इसी मौके की तलाश में थे ताकि सब लोगों को दावत दे सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा। मूसा ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है, और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। मतलब ये था कि चाश्त के वक्त लोगों को जमा होने के लिए कहा जाए। फिरौन ने 40 जादूगर बुलाए, अपनी मर्जी से उनका इंतखाब किया। वो सब के सब नौजवान थे। उन्होंने बड़े बड़े जादूगरों से बचपन ही से जादू का फन सीखना शुरू कर दिया था। अपने बचपन से लेकर जवानी तक वो जादू ही सीखते रहे थे। गरज सब के सब यानी 40 जादूगर जमा हो गए, फिर मैदान में आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जिन अल्फाज में डराया वो सूरह तौहा आयत 61 में आए हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी है, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तिरा न बांधो, कहीं अल्लाह तुम्हें किसी किस्म की सजा से
नेस्त तो नाबूद न कर दे, और जो झूठ बांधता है वो बिलाखिर नाकाम ही रहता है। जादूगरों ने ये सुनकर चेहमे गोइयां शुरू कर दी। उनको लोग तो सुन रहे थे, लेकिन फिरौन नहीं सुन रहा था। सूरह तौहा आयत 62 में है। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और छुपकर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। मतलब ये कि वो आपस में कहने लगे, मुमकिन है ये नबी ही हों, इन्होंने हमें पहले ही खबरदार कर दिया है। कुछ की राय इसके खिलाफ थी। फिर सलाह मशवरे के बाद ये सब फिरौन के पास आए और कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो क्या हमें कोई बड़ा सिला और इनाम भी मिलेगा? जवाब में फिरौन ने कहा, हाँ, बल्कि इससे बढ़कर ये कि तुम इस सूरत में हमारे मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। अब उनमें लालच पैदा हुआ, लोगों में ऐलान करने लगे, कहने लगे, बेशक ये दोनों महज जादूगर हैं। इनका पुख्ता इरादा है कि ये अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारे उम्दा मजहबी तरीके को खत्म ही कर दें। फिर आपस में बातें करते हुए यूं कहने लगे कि इख्तिलाफ न करो, सब मिलकर अपनी तदबीर आजमाओ और सफ बनाकर मुकाबले में आओ। चुनाचे 40 के 40 जादूगर एक ही सफ बनाकर फख्र और गुरूर से चलते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, बस हारून अलैहिस्सलाम आपके पीछे थे। लोगों की हालत देखने के काबिल थी। उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे, जो आज गालिब आ गया वही कामयाब है। जादूगर फिर कहने लगे, ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि पहले उन्हें डालने दे।